नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। देखिए, आज का दिन मिजोरम के लिए बहुत अहम है, बहुत ही खास है, क्योंकि आजादी के 78 साल बाद आज मिजोरम को ऐसा तोहफा मिलेगा जो बहुत ही ऐतिहासिक और मिजोरम वासियों के लिए बहुत ही सुखदायी होने वाला है। देखिए, पीएम मोदी का आज मिजोरम का दौरा है। पीएम मोदी वहां पहुंच चुके हैं और मिजोरम में बैराबी सरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। इंसा के बाद मणिपुर का भी पहला दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मणिपुर को भी 8,500 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन नॉर्थ ईस्ट। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आजादी के 100 वर्ष जब हम पूरे करेंगे तो हम विकास की एक नई गाथा लिखेंगे, उस कदम की ओर देखिए लगातार एक छोटे छोटे जो बेबी स्टेप जिसे हम कहते हैं, लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान अगर हम कहें तो रेलवे की ओर से ये जो प्रोजेक्ट मिजोरम को इस वक्त दिया जा रहा है, ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, लगभग 8,000 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिसका आज शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम में करेंगे। और 3 ट्रेनों की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम को देंगे, जो सीधे राजधानी से कनेक्ट होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि मिजोरम की राजधानी will significantly reduce. What used to take days will now be done in hours. And above all, we are also starting one refrigerated coach. The beautiful turmeric, the beautiful ginger and the very, very unique fruits of Mizoram will now find new markets. Friends, all this was possible because of our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji's strong leadership and firm commitment for Mizoram. I request you all to stand up and say, "Kalo mein Modi ji." Please stand up, all of you. Say, "Kalo mein Modi ji." Say with me, "Kalo mein Modi ji." Kalo mein Modi ji. Thank you, Modi ji. Thank you so much, friends. Friends, development of Northeast started when our Prime Minister Modi ji started the Act East policy. Before that, it was only Look East. Modi ji started Act East. I'll give you one example. Before 2014, the budget for railway for Northeast was only 2,000 crore. Only 2,000 crore. Modi ji increased it 5 times to 10,000 crore. That is the Act East policy of Modi ji. Today, railway projects of 77,000 crore rupees are undergoing construction in the entire Northeast. That is our Prime Minister's doctrine of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Friends, together we will all work to make prosperous Mizoram. Once again, I welcome you all to this historic day. Thank you. Bharat Mata ki Jai. Kalo mein. Namaskar. उनकी हार्दिक स्वागत के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। And now I kindly request the Honorable Chief Minister of Mizoram, Pulal Duoma, to address the gathering. Kan Chief Minister Zaum Takkan Some. Respected Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Mizoram, General V.K. Singh ji, Honorable Union Minister for Railways, Sri Aswani Vaishnaw ji, esteemed colleagues, distinguished guests, and my beloved people of Mizoram. Today is a historic day for our state. We are deeply honored to welcome the Honorable Prime Minister to Mizoram
for the inauguration of the Bairabi Sairang Railway and Sairang Railway Station, a landmark achievement that marks a new chapter in our journey toward connectivity and progress. Honorable Prime Minister, your presence here today is a powerful symbol of your unwavering commitment to the development of the Northeast and to the vision of an inclusive, connected India. This railway line is more than a feat of engineering. It is a symbol of inclusion, a national integration, and of the shared aspirations of our people. It brings Mizoram closer to the rest of India and India closer to the hopes of Mizoram. We also thank the Honorable Railway Minister, Sri Ashwini Vaishnaoji, for his tireless efforts in bringing this project to completion. The 51.38-kilometer stretch, built through some of the most challenging terrain in the country, is a remarkable achievement and stands as a testament to engineering excellence and human perseverance. To the Railway Board, the engineers, the workers, and the local communities who made this possible, we salute your dedication. You have built more than a railway line, you have built a lifeline for Mizoram. We also pause to pay solemn tribute to the railway workers who tragically lost their lives in the mishap of August 2023. Their sacrifice is etched into the very soil of this project. They did not just build bridges and tunnels, they laid down their lives in service of a vision larger than themselves. We offer our deepest condolences to their families. Honorable Prime Minister, we are also grateful for तो देखा आपने कि मिजोरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वहां पर करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आजादी के 78 साल बाद जब ये ऐतिहासिक दिन मिजोरम वासियों को देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए अजीत झा जी मौजूद है, अर्थशास्त्री हैं, और क्योंकि देखिए ये विकास का मुद्दा है इसलिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में और चर्चा के लिए भी आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यही समझना चाहेंगे, देखिए आत्मनिर्भरता की ओर एक और भारत बढ़ रहा है, लेकिन सोचने की बात यह भी है कि आज़ादी के 78 साल बाद मिजोरम को आज रेल कनेक्टिविटी मिल रही है। इससे मिजोरम में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और भारत के लिए ये कितना अहम हो सकता है? देखिए, पहली बात तो कि आपने सही कहा कि 75 साल से ज़्यादा हो गए और पहली मिजोरम को रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है, तो इससे एक फायदा तो ये हुआ कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है हमारा मिजोरम के साथ, जो डायरेक्ट दिल्ली से, गुवाहाटी से या कोलकाता से हो जाएगा। जैसा कि अभी रेलवे मिनिस्टर ने भी कहा कि दिल्ली से डायरेक्ट जो है राजधानी ट्रेन जो है, वीकली ट्रेन जाएगी मिजोरम के लिए। तो मिजोरम के जो लोग जो जहाँ दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं या जो पढ़ने आते हैं यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट, और भी जो व्यापार से संबंधित चीजें हैं, ट्रेड से रिलेटेड चीजें हैं, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि वो भी बोल रहे थे कि एक जो पर्टिकुलर कोच होगा जो कि रेफ्रिजरेटेड कोच होगा, जैसे कि टर्मरिक की बात कर रहे थे वो अभी, क्योंकि हम जानते हैं कि मिजोरम में जो सबसे ज्यादा जो मिजोरम फेमस है वो फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग में जो स्पाइसेस हैं, वहाँ की जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो उनका जो उनके लिए जो मार्केट जो पास के स्टेट्स हैं, चाहे वो त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, असम हो या कोलकाता में हो, और साथ ही साथ दिल्ली तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इससे होने, साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेलवे लाइन से जुड़ने से जो हमारा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है ईस्टर्न कंट्रीज को लेके, जो कि साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उससे भी हमारा जो है जो कनेक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो ये बैरबी सारंग रेल लाइन है, इसको और भी सदर्न पार्ट तक ले जाने का जो प्लान है गवर्नमेंट का, जो 300 किलोमीटर का और प्रपोज प्लान है, जब वो बन जाएगा तो हम म्यांमार के भी करीब पहुंच जाएंगे, तो हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा।
बिल्कुल। अजीत जी, ये भी देखना होगा क्योंकि आज़ादी के 78 साल बाद जब एक राज्य रेल कनेक्टिविटी से जुड़ता है तो वहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9,000 करोड़ रुपए की सौगात मिजोरम को दे रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी ये जो पूरा तैयार हुआ है, ये प्रोजेक्ट, इसको तैयार होने में पूरे 11 साल लगे हैं। 2015 में शुरुआत हुआ था, अब जाके खत्म हुआ है, लगभग 11 साल का वक्त लगा। सर, आने वाले समय में अगर इस रेल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसी नई सड़कें जोड़ी गई हैं, कई ऐसे पुल तैयार किए गए हैं, किस तरीके से वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकेगा, इसको ज़रा हम समझना चाहेंगे। और क्योंकि भारत बढ़ती जीडीपी को लेकर अगर हम बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं, तो ये कितना भारत के लिए अच्छा आगे साबित होने वाला है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे सर, पहली एक बात, मिनट आपको रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं दर्शकों, मिजोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। Let us witness a short film giving insights मंत्री on लाल the दोहोमा के साथ अश्विनी वैष्णव भी इसमें मौजूद हैं। जी अजीत जी, आप तक। जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि सबसे पहली बात है कि मिजोरम जो है, लिटरेसी रेट के आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 91% लोग जो हैं लिटरेट हैं। सो वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया है। तो एक हाईएस्ट लिटरेट वर्कफोर्स है मिजोरम में, जो कि दूसरे स्टेट्स में जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा जो हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड में, वो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए। तो उस केस में मिजोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट होगा। दूसरा जो प्रश्न है कि किस तरह से वहाँ के लोगों का, आम लोगों का वहाँ पे किस तरह से फायदा होगा रेल लाइन से, तो वास्तव में जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो रोड के प्रोजेक्ट्स हों, इससे लोगों का वहाँ का जीवन जो है साथ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुधार होता है। क्योंकि उनसे उनकी जितनी एक्टिविटी होती है उनमें वो लॉजिस्टिक कॉस्ट की हम बात करें तो उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उससे उनका जो कॉस्ट है, जो लोग कॉस्ट बियर कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मान लीजिए जो वेजिटेबल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनका कॉस्ट कम हो जाएगा। जो लोग खरीदने वाले लोग हैं, कंज्यूमर हैं, उनको कम में मिलेगा और उनका मार्केट जो है एक्सेस वो बढ़ जाएगा। इसके साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो रेलवे के साथ साथ जो गवर्नमेंट लगातार वहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा काम कर रही है। अभी हाल में ही जो गवर्नमेंट ने जो आइजोल से लेके जो एक सॉदर्न पार्ट है मिजोरम का, वो तुईपंग करके एक जगह है जो कि जो हाईवे कनेक्ट किया है, 300 किलोमीटर लंबा है ये कनेक्शन। तो इस तरह की चीजें जो पहले नहीं हो पाई थी, उसके होने से बहुत ज्यादा सुधार वहां पे हो रहा है। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा क्योंकि ये जो कनेक्टिविटीज इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम को दे रहे हैं, इससे न केवल रेलवे परियोजना है बल्कि इसमें सड़क, ऊर्जा, खेल समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जो शामिल होते हैं। लेकिन सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूँ कि क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि भारत की जीडीपी और भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बढ़ती है। अब देखिए, अब देश की चौथी अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया में भारत बनकर उभरा है। और अगर हम बात करते हैं कि हम जब आज़ादी का 100वां साल, यानी कि जो 100वां साल हम मनाएंगे, तो उस वक्त अगर हम इस लिहाज से आज के इस ऐतिहासिक दिन को देखें तो आज का दिन कितना अहम होने वाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिजोरम बहुत ही एक ग्रोइंग स्टेट से, नॉट ओनली इन जीडीपी के टर्म्स में देखें तो लास्ट 10 इयर्स में जो जीडीपी है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मिजोरम का, वो लगभग 10% से ज्यादा के रेट से इंक्रीज किया है। साथ ही साथ जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरे देश की इकोनॉमी को फायदा करेगा, तो अब यदि इंडस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, उसको लेके गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और मिजोरम के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि एमएसएमई सेक्टर में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल की जो बैम्बू प्रोडक्शन है मिजोरम में, वो 14% होता है, सबसे ज्यादा बैम्बू प्रोडक्शन होता है। तो बैम्बू के कई हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो है आप देखते हैं जो मिजोरम से बन के आते हैं, तो इनका मार्केट बढ़ेगा। सिमिलरली स्पाइसेस वगैरह जो हैं उनके मार्केट्स बढ़ेंगे। तो इस तरह के जो एमएसएमई प्रोडक्ट्स हैं जो उनका, क्योंकि आने वाले समय में एमएसएमई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, तो इसमें मिजोरम मुझे लगता है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है और उससे मिजोरम की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी और देश की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी।
बिल्कुल, और मैं ये भी समझना चाहती हूँ क्योंकि मिजोरम जिसकी हम जब भी मिजोरम का नाम आता है तो हमारे जहन में सबसे पहले वादियाँ आती हैं। पर्यटन के लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अब तो रेलवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही है। 3 रेलों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री, जो आइजोल से दिल्ली, आइजोल से गुवाहाटी और आइजोल से कोलकाता के लिए होगी। तो पर्यटन के लिहाज से अगर हम इस चीज को समझे तो कितना महत्वपूर्ण? जी, पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग अभी जो मिजोरम नहीं पहुंच पा रहे थे, जो क्योंकि जो फ्लाइट से जो कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा होता था। अब ये ट्रेन से पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप गुवाहाटी से जा सकते हैं, गुवाहाटी से दिल्ली जा सकते हैं वहां पे। तो वहां पे और साथ ही साथ दिल्ली से जो राजधानी एक्सप्रेस के थ्रू वीकली ट्रेन हो जाने से वहां जाना आसान हो जाएगा। तो डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको किस तरह से उसके लिए जाहिर सी बात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर विपुल सुनील जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, अब जब आए हैं तो एक सवाल मेरा यहाँ पर उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ऐतिहासिक जवाब लेने से पहले आपको ये लाइव तस्वीरें हम आप दिखा रहे दर्शकों को। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और 3 रेल जो कि आइजोल से कोलकाता, आइजोल से गुवाहाटी और आइजोल से दिल्ली यानी कि डायरेक्ट राजधानी से कनेक्टिविटी इनकी होगी, उसको हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। आज मिजोरम के लिए बहुत ही खास, बहुत ही अहम दिन, ऐतिहासिक दिन जिसको हम कह सकते हैं। मिजोरम को 78 सालों बाद, आज़ादी के 78 सालों बाद आज रेलवे की कनेक्टिविटी मिल रही है। न सिर्फ इतना बल्कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम को सौगात दे रहे हैं, इसमें सड़क, ऊर्जा, खेल समेत कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको ये प्रोजेक्ट्स कवर करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए आपको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर इस वक्त मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा भी मौजूद हैं। इसी के साथ अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री भी वहां पर मौजूद है। और देखिए, सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग इस वक्त आए हुए हैं, पहुंचे हुए प्रधानमंत्री के स्वागत में। और आज का ये ऐतिहासिक दिन सब अपनी नज़रों में कैप्चर करना चाहते हैं, अपनी नज़रों में रखना चाहते हैं, क्योंकि मिजोरम के लिए आज का दिन बेहद खास है। अगर हम व्यापार की ही बात करते हैं तो मिजोरम की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले अश्विनी वैष्णव जी भी कर रहे थे, जब उन्होंने हल्दी की बात की, उन्होंने मसालों की बात की। और जब मिजोरम की वादियों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए वहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता था पर्यटकों के लिहाज से भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि रेलवे की कनेक्टिविटी थी नहीं। जो भी था वो सब कुछ आप सड़क मार्ग से पूरा कर सकते हैं या फिर आपको एयरपोर्ट उतरने के बाद एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। लेकिन अब सड़क की भी कनेक्टिविटी इससे मिल रही है, अब रेलवे की भी कनेक्टिविटी मिलेगी और अब मिजोरम डायरेक्टली राजधानी से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये पहली बार जोड़ने वाली बैराबी सेरांग रेलवे प्रोजेक्ट जो है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर दिया है। अब ये जो सुरंग है और ये जो इसमें ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें 48 सुरंगें हैं जो कि लगभग 12 किलोमीटर का लंबा जो एक दायरा है वो पूरा करेगी। इसमें इस पूरे प्रोजेक्ट में 142 पुल भी शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि 104 मीटर ये जो पुल है वो लंबा है। यानी कि खासियत हमें याद होगा जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी बीच अब दोनों मेहमानों से मैं माफी चाहूंगी, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ मिजोरम से बोल रहे हैं, दर्शकों को सुनवाते हैं। My colleague in the Union Cabinet, Shri Ashwini Vaishnav ji, ministers of the Mizoram government, MPs and other elected representatives. Greeting to the wonderful people of Mizoram. I bow to Supreme God Pathyan, who watches over this beautiful land of the Blue Mountains. I am here at Mizoram's Langpui Airport. Unfortunately, due to bad weather, I am sorry that I am not able to join you at Aizol. But I can feel your love and affection even from this medium. Friends, whether it is the freedom movement
or nation building, the people of Mizoram have always come forward to contribute. The ideals of people like Lalnu Ropai Lianji and Pathaltha Khuangchera continue to inspire the nation. Sacrifice and service, courage and compassion, these values are at the center of Mizo society. Today, Mizoram is playing an important role in India's development journey. Friends, this is a historic day for the nation, particularly for the people of Mizoram. From today, Aizawl will be on India's railway map. A few years ago, I had the opportunity of laying the foundation stone for the Aizawl railway line. And today, we proudly dedicate it to the people of the nation. Overcoming many challenges, including difficult terrain, this Bairabi-Sairang rail line has become a reality. The skills of our engineers and the spirit of our workers made this possible. Friends, our hearts have always been directly connected with each other. Now, for the first time, Sairang in Mizoram will be connected directly with Delhi by the Rajdhani Express. This is not just a railway connection, but it is a lifeline of transformation. It will revolutionize the lives and livelihoods of the people of Mizoram. Farmers and businesses of Mizoram can reach more markets across the nation. People will be able to access more options for education and healthcare. This will also create employment opportunities in tourism, transport, and hospitality sectors. Friends, for a long time, some political parties in our country practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. For the past 11 years, we have been working
for the development of the Northeast. This region is becoming the growth engine of India. Friends, over the years, many states of the Northeast have been put on the rail map of India. For the first time, rural roads and highways, mobile connectivity and internet connections, electricity, tap water and LPG connections. The government of India has worked hard to strengthen all kinds of connectivity. Mizoram will also benefit from the Udan scheme for air travel. Soon, helicopter service will begin here. This will improve access to remote areas of Mizoram. Friends, Mizoram has a major role in both our Act East policy and the emerging Northeast Economic Corridor. With the Kaladan multi-modal transit transport project and Serang Humang Buchehua rail line, Mizoram will also get connected to the Bay of Bengal through Southeast Asia. Due to this, trade and tourism will be boosted across Northeast India and Southeast Asia. Friends, Mizoram is blessed with talented youth. Our work is to empower them. Our government has already started 11 Eklavya residential schools here. Work is going to start 6 more schools. Our Northeast is also becoming a major hub for startups. I am happy that around 4,500 startups and 25 incubators are operating in the region. Young people of Mizoram are actively joining this movement and opportunities for themselves and others. Friends, India is quickly becoming an important hub for global sports. This is also creating a sports economy in the country. Mizoram has a wonderful tradition of sports, producing many champions in football and all other sports. Our sports policies are benefiting Mizoram as well. Under the Khelo India scheme, we are supporting the creation of modern sports infrastructure. Recently, our government has also come out with a national sports policy, Khelo India Khel Niti. This will open new doors of opportunities for the youth of Mizoram. Friends, whether in our country or abroad, it gives me great happiness to play the role of an ambassador of the beautiful culture of the Northeast. Encouraging platforms that showcase
the potential of the Northeast is important. A few months ago, I had the opportunity to participate in the Ashtalakshmi festival in Delhi. It showcased the textiles, crafts, GI tag products and tourism potential of the Northeast. At the Rising Northeast Summit, I encourage investors to tap into the potential of the Northeast. The summit is opening up the path for massive investment and projects. When I talk about being vocal for local, it greatly benefits the artisans and farmers of the Northeast too. Mizoram's bamboo products, organic ginger, turmeric and bananas are well known. Friends, we are constantly taking steps to boost ease of living and ease of doing business. Recently, next generation GST reforms have been announced. This means lower taxes on many products, making life easier for families. Before 2014, even daily essentials like toothpaste, soap and oil were taxed at 27%. Today, only 5% GST is applicable. During Congress rule, medicines, test kits and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST rates will also make medicines for serious diseases like cancer more inexpensive. After September 22nd, cement and construction materials will also become cheaper. Many companies that manufacture scooters and cars have already reduced prices. I am sure that the festive season this time will be even more vibrant across the nation. Friends, as part of the reforms, GST on most hotels had been reduced to only 5%. Traveling to various places, staying in hotels and eating out will become cheaper. This will help more people travel, explore and enjoy different parts of our country. Tourist hubs like the Northeast will particularly benefit from it. Friends, our economy has seen a growth of 7.8% in the first quarter of 25-26. It means India is the fastest growing major economy in the world. We are also seeing the growth of Make in India and exports. During Operation Sindoor, you all saw how our soldiers taught a lesson to those who sponsored terror.
the whole nation was filled with a sense of pride about our armed forces. In this operation, Made in India weapons played a significant role in protecting our country. The growth of our economy and manufacturing sector is very important for our national security. Friends, our government is committed to the welfare of every citizen, every family, and every region. It is through the empowerment of the people that a developed India will be built. In this journey, I am confident that the people of Mizoram will play a very important role. Once again, I extend my heartfelt congratulations to you all and welcome Aizawl to the railway map of India. Today, due to the weather, I could not come to Aizawl, but I'm sure that we will meet very soon. Thank you. Thanks a lot. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने आज रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात मिजोरम वासियों को दी है। न सिर्फ इतना, बल्कि सौगात देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म की भी बात की है और इसी के साथ साथ आज़ादी के 100वें साल में भारत किस तरीके से जश्न मनाएगा, विकास के नए आयाम रचेगा, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी बातें कही है। न सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और ये भी कहा है कि इस वक्त मैं आइजोल के कार्यक्रम में मौजूद नहीं हूँ, उसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम वासियों को करोड़ों की सौगात और खास तौर पर रेलवे कनेक्टिविटी की सौगात देते हुए नजर आए। तो लगातार हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अजीत झा जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर विपुल सुनील जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। विपुल जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आ गए थे, उनका भाषण शुरू हो गया था, इसलिए आपको रोकना पड़ा था। सर देखिए, मिजोरम में तो अभी चुनाव भी नहीं है, हालांकि जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य को सौगात देते हैं तो विपक्ष का यही कहना होता है कि प्रधानमंत्री गए हैं क्योंकि उन्हें चुनाव का प्रचार करना है। अब तो वहां पे कोई चुनाव भी नहीं है और करोड़ों की सौगात, और सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो 78 साल बाद रेलवे की कनेक्टिविटी की सौगात आज मिजोरम को मिली है। सुचित्रा जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। विपक्ष क्या कहता है नहीं कहता है, उससे पहले तो मैं कहूंगा कि मिजोरम को, देश को, प्रधानमंत्री को और रेल मंत्री सहित उन कर्मचारियों को, उन इंजीनियर्स को, रेलवे के उन कर्मचारियों को और सबको, पूरे देश को मैं बधाई देता हूं कि एक बहुत दुर्लभ जगह पर इस तरह का काम किया गया, ठीक है ना, और दुरूह काम था जो, उसके लिए बधाई। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है उस तरफ मेरा ध्यान बार बार जा रहा है। प्रधानमंत्री को कहने के पीछे विपक्ष के प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं कारण छोड़ जाते हैं। आज देखिए कितना बढ़िया दिन है, कितना बड़ा काम किया है उन्होंने, और उस पर बात करते हुए फिर भी वो कांग्रेस को बीच में ला देते हैं, फिर भी वो इस बात को ला देते हैं, जबकि कहीं कोई चुनाव नहीं है मिजोरम में, या लेकिन दूसरे जगह के चुनाव को ध्यान में रखते हैं, या क्या है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी मुझे लगता है कि हर जगह चुनावी मोड में बातचीत नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़ा दिन है आज देश के लिए और बड़ा काम हुआ है, निश्चित तौर पर बधाई के पात्र है। मैं बिल्कुल खुले मन से ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को ये बहुत पहले करना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस की असफलता है। लेकिन क्या इस मौके पर और इस दिन पर इस तरीके से बात को करना और मेंशन करना जरूरी था क्या? और अगर जरूरी था तो आप समझिए कि विपक्ष इस तरह का आरोप लगाता रहेगा। विपक्ष को मौका प्रधानमंत्री जी भी दे रहे होते हैं अपने वक्तव्यों से, क्योंकि उनके वक्तव्य में
कहीं कोई मुझे नहीं लगता कि आज जरूरत थी इस बात की कि कांग्रेस ने नहीं किया, क्या हुआ और माफी मांगते हैं, लंबे समय तक नहीं हुआ। इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। नहीं पहुंचने के लिए माफी मांगना चलिए ठीक है, लेकिन ये जिस तरीके से बातचीत करने का जो मतलब लहजा ढंग कह लीजिए, प्रस्तुति का, और निश्चित तौर पर चुनावी राजनीति के मास्टर आदमी है, कहीं तीर मारना है और कहीं निशाना है। हो सकता है बिहार का चुनाव होना है और उसके लिए भी संबोधित कर रहे हो, इस खुशी के क्षण को भी, इस उपलब्धि के क्षण को भी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ वो कर रहे हो कि चलिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मतलब अन्य जगहों पर इसका भी लाभ मिले, ठीक है, तो वो लाभ लेने के लिए कर रहे होंगे। तो अब जब ऐसा होगा तो विपक्ष निश्चित तौर पर सीधे तौर पर इस चीज को कहेगा कि प्रधानमंत्री ने इसको भी राजनीतिक बनाया। मैं इसको इस तरह से देखता हूं सुचित्रा जी। बाकी आपका प्रश्न आमंत्रित। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज ये बात कहते हुए नजर आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया, क्योंकि विपक्ष ने, उन्होंने कांग्रेस पर सीधा सीधा निशाना साधा कि 70 साल तक उनकी सरकार थी लेकिन फिर भी ये चीजें नहीं हुई। हालांकि देखिए, जब भी देर आए दुरुस्त आए, अब मिजोरम को यह कनेक्टिविटी मिली है, फायदा बहुत होने वाला है। हमारे साथ अजीत झा भी बने हुए, उनके तरफ चलेंगे। सर, आज की कनेक्टिविटी जो मिली है मिजोरम को, कितना फायदा पहुंचाने वाली है भारत को भी और खासकर मिजोरम को भी? देखिए, मिजोरम तो भारत का ही अंग है, तो मिजोरम फायदा होगा तो पूरे देश को फायदा होगा उससे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि रेलवे कनेक्टिविटी के बढ़ने से वहाँ के जो लोग हैं, जो दिल्ली जैसे लोगों यहाँ पे काम, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, उन लोगों को जाने में आसानी होगी। यहाँ से जो लोग जाना चाहते हैं टूरिज्म के पर्पज से, उनको आसानी होगी। ट्रेड और कॉमर्स में जो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है जब रेलवे जैसे माध्यम से के बनने से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने भी अभी ये बात कहा कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उससे बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, क्योंकि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारा ट्रेड और ये सब बढ़ेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे हम उस क्षेत्रों में अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो हम म्यांमार के रूट से हम दूसरे कंट्रीज तक पहुँच सकते हैं, और तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल। विपुल जी, जैसे कि सर बता रहे थे कि क्योंकि ये कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि राजधानी के साथ डायरेक्ट इसका जुड़ाव होगा। पर्यटन के लिहाज से भी आज मिजोरम को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। ये भी समझना चाहेंगे कि 78 साल बाद आज़ादी के जब ये एक बड़ा दिन मिजोरम को देखने को मिलता है, तो आप क्या समझते हैं आगे के दिनों में राजनीति में कैसी हलचल देखने को मिलेगी? देखिए, राजनीतिक हलचल तो ठीक है जिस तरह की रही, लेकिन इसको सेलिब्रेट करते हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस 7 सिस्टर जिन्हें हम कह रहे होते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लंबे समय तक तमाम मेन स्ट्रीम के संसाधनों से दूर रखा गया, और मेन स्ट्रीम में शामिल होने से निश्चित तौर पर अर्थशास्त्री महोदय जैसी बात कर रहे थे कि उसका फायदा मिलेगा, और फायदा केवल मिजोरम के लोगों तक सीमित नहीं है। मिजोरम जाने के लिए, मिजोरम या नॉर्थ ईस्ट में हम तमाम अन्य जगहों पर, दूर जगहों पर जाने के लिए, जैसे सीधी हमारे पास सुविधाएं नहीं हुआ करती थी यातायात के लिए, उन सुविधाओं के आने के बाद व्यापार से लेकर के और पर्यटन तक में बढ़ावा जब मिलेगा, और इससे अब अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी, आपने भी और पैनलिस्ट ने भी इस पर मुझे लगता है कि बातचीत करते हुए किया कि हम दुनिया के चौथे बड़े अर्थ में आर्थिक शक्ति बनने की तरफ हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से उभार पर है, तो उस अर्थव्यवस्था के उभार की ही एक अगली कड़ी में ये भी शामिल होगा, और ये कहीं न कहीं उसमें सहभागिता निभाएगा। इस तरह से मिजोरम से मतलब यातायात की सुगमता बढ़ने की वजह से मैं बार बार एक चीज के लिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने, मैं जो सच बात होती है, जो मुझे लगता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, इस सरकार ने कई ऐसे दुर्गम जगहों पर संसाधनों को पहुंचाने का काम किया है। चाहे आप जम्मू कश्मीर की रेल लाइन का देख लीजिए, अटल टनल की बात देख लीजिए, इन सब जगहों पर काम करके इस 11 वर्ष की सरकार ने ये भी आईना दिखाने का काम किया है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कहीं न कहीं कुछ चीजों को, जिसे मतलब एकदम से मान लिया कि जो नहीं संभव है, संभव ही नहीं है, दुर्गमता के आधार पर और उसकी मतलब प्राकृतिक बुनावट के आधार पर उन जगहों को नहीं छुआ, उनको छू करके निश्चित तौर पर विकास के एक नए प्रतिमान खड़े कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में
इसको लेकर के मतलब भारत को फायदा नहीं सिर्फ होगा, बल्कि आने वाले दिनों में मैं कह रहा हूं कि कोई भी सत्ता में रहे आने वाले समय में 10 साल 20 साल 15 साल बाद मान लीजिए कांग्रेस या जिसे इंडी गठबंधन कर रहे हैं वो सत्ता में आते हैं, तो वो भी इस तरह का कोई भेदभाव नहीं कर पाएंगे कि दुर्गम क्षेत्रों को छोड़ देंगे। और नॉर्थ ईस्ट लंबे समय तक मेन स्ट्रीम से बाहर रहा है और कई बार आप देखती हैं कि उस बाहर रहने से उनके भीतर एक आत्मबोध आता है और वो पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति से और भारत की अन्य जड़ों से मतलब अपने को जोड़ नहीं पाते। जब इस तरह की कदम बढ़ाए गए हैं, जब रेल पहुंचती है और यातायात पहुंचना केवल यातायात पहुंचना नहीं है, रेल का पहुंचना केवल पहुंचना नहीं है, बल्कि संस्कृतियों की आवाजाही ऐसे बढ़ेगी सुचित्रा जी कि वे अपने आप को अलग करके नहीं देख पाएंगे। बहुत बार आपको मालूम है कि इन राज्यों में एक अलगाववादी किस्म की राजनीति भी पनपती है। चूंकि राजनीति पर आपने सवाल पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस तरह की अलगाववादी राजनीति को यह झटका देने का काम किया है और आने वाले दिनों में इस तरह की पहल से अलगाववादियों को जवाब मिलेगा और वो वहां के भोले भाले लोगों को बरगला नहीं पाएंगे। उन्हें ये नहीं कह पाएंगे कि आपके साथ आप तक संसाधन नहीं पहुंच रहे हैं, आपके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है, आपको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। सो कॉल्ड मान लीजिए कि देश में तमाम जगहों पर आप देखते हो कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए तमाम तरह के शब्दों का भी प्रयोग होता है, जो वो एक अलगाव का थोड़ा बहुत संस्कृति से भी चीजें आती हैं और उसको हमने बाइफरकेट करके देखा है। वो बाइफरकेशन मुझे लगता है कि खत्म होगा और आने वाले समय में एक तरह से ऐसा जुड़ाव होगा कि मतलब गड्ढ मड्ढ जिससे हम कह रहे होते हैं कि दोनों जुड़ जाएंगे और मतलब नॉर्थ ईस्ट दोनों जुड़ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए हमारे साथी पैनलिस्ट ने भी कहा कि मिजोरम भारत का हिस्सा है, कोई अलग नहीं है, उसको मिजोरम को अलग से बधाई न दी जाए। निश्चित तौर पर मिजोरम भारत का हिस्सा है और उसको अलग से बधाई न देने वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ एक कारण यही दुर्गमता की, संसाधनों की न पहुंच होने के कारण ये स्थिति बनी है कि आज तक वो थोड़ा अलग थलग पड़े थे और उसी अलग थलग पड़े हुए भाव को खत्म करना है और उसके लिए इसे मैं एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखता हूं। और बाकी भीतर कोई राजनीति का यहाँ स्पेस बनता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी ठीक है कांग्रेस का जिक्र किया, 70 साल में जो नहीं हुआ। राजनेता करते हैं, कोई भी पार्टी का मुखिया होगा तो करेगा अपने लाभ के लिए, लेकिन और कोई स्पेस मेन स्ट्रीम की राजनीति में इसके लिए कोई बहुत मतलब विरोध का नहीं बनता है। सबको खुशी होगी, कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के लोगों को भी इससे खुश होना चाहिए कि क्या नाम है कि संसाधनों की पहुंच नॉर्थ ईस्ट तक पहुंची है और वहां के अलगाववादियों में इसके लिए घोर निराशा देखने को मिलेगा। इसके पहुंचने से उनके कुकृत्यों पर रोक लगी। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। और देखिए आज का प्रधानमंत्री का ये दिन आज इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर भी जाने वाले हैं। अजीत जी आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए एक तो मिजोरम को सौगात मिल ही रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों में 5 राज्यों को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। तो आने वाले समय के लिए अगर हम सिर्फ देखते हैं इसको, क्योंकि देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देते हैं, शिलान्यास करते हैं या फिर उसकी आधारशिला रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फ्यूचर पहले से डिसाइड होता है कि कई लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, इससे अर्थशास्त्र अगर हम इससे इकोनॉमी को भी कहते हैं तो उससे भी बूस्ट मिलेगा। तो आज प्रधानमंत्री कई ऐसे राज्य हैं जिनका दौरा करने वाले हैं, करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। तो अगर हम भारत के लिए ही इसको देखते हैं, क्योंकि भारत आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहा है और हमने देखा है पिछले दिनों में किस तरीके से टैरिफ को लेकर खूब चर्चा हुई है, क्या इम्पैक्ट इसका आगे पड़ने वाला है? देखिए पहली बात तो जैसे कि अभी आप बोल रही थी कि और भी स्टेट्स में प्राइम मिनिस्टर का दौरा होने वाला है नेक्स्ट 2 डेज में, और मैं बिहार की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी अभी उड़ान स्कीम की बात कर रहे थे। तो उड़ान स्कीम के तहत ही बिहार में जो ईस्टर्न पार्ट है बिहार में, जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। और ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत दिनों से ये डिमांड भी चल रहा था कि पूर्णिया में भी एक एयरपोर्ट होना चाहिए, जिससे जो ईस्टर्न बिहार के जो लोग हैं, पूर्णिया, कटिहार या आसपास के और डिस्ट्रिक्ट हैं, अररिया है, इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से लोगों को डायरेक्ट जो है वो दूसरे स्टेट्स में या मतलब दिल्ली आना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी होगी। तो उसका एक बहुत बड़ा वो एक उदाहरण है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। जहाँ तक आप जीएसटी की बात कर रही थी, कि एक तो पहली बात है कि जीएसटी में जो मल्टीपल रेट्स थे उसमें उसके रैशनलाइजेशन हो जाने से फायदा ये होगा कि आपको
जो जीएसटी पे करने वाले लोग हैं उनको भी आसानी होगी कि एक रैशनलाइज हो गया कि आपको ये दो या 3 रेट्स हैं, आपको यही पे करने हैं, तो उससे फायदा होगा। साथ ही साथ जीएसटी के रेट कम होने से क्या होगा कि जो डोमेस्टिक डिमांड जो है, जो अभी आप भी बात कर रही थी कि डोमेस्टिक डिमांड को लेकर, वो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था पूरे विश्व में बन रही है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की अपनी डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो कि लोगों के पास डिमांड हो। जो लोग रह रहे हैं, घरेलू डिमांड, तो घरेलू मांग जितना बढ़ेगा उससे हमारी इकोनॉमी उतनी मजबूत होगी, और मैं देखता हूं कि जीएसटी के रेट कम होने से इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मिजोरम जो कि अब तक काफ़ी दूर था, जो कि राजधानी से अगर हम कह सकते हैं रेलवे कनेक्टिविटी से दूर था, व्यापार के मामले में अगर हम कहें तो काफ़ी वो अलग थलग सा पड़ा हुआ था, लेकिन आज की ये सौगात के बाद से अब मिजोरम भी मेन लाइन से जुड़ सकेगा और व्यापार में भी उसको काफ़ी वृद्धि होने वाली है। विपुल जी, आपसे भी इस चीज़ समझना चाहूँगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर भी जा रहे हैं। अब विपक्ष देखिए कल से इसको लेकर प्रधानमंत्री पर हमलावर है। पहले तो ये कि 28 महीने बाद क्यों जा रहे हैं। अब देखिए अब तक ये सवाल होता था कि जा क्यों नहीं रहे, अब जा रहे हैं तो ये सवाल हो रहा है कि इतनी देर क्यों जा रहे हैं। सर, इस पे अगर ऐसी ही बहस चलती रहेगी तो आखिर विराम कब लगेगा इन सारी चीजों पर? मैं लंबे समय से सुचित्रा जी ये कह रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं पिछले 3 वर्ष से कह रहा हूँ कि इस समय विपक्ष भी अपने मतलब मूल काम से, मूल धर्म क्या होना चाहिए विपक्ष का, उससे भटका हुआ है। लगातार देश में राजनीतिक गिरावट जिस तरह की दिखलाई पड़ रही है, जिस तरह की भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, और जिस तरह का बेवजह विरोध, केवल मणिपुर जाने के प्रधानमंत्री का विरोध पर बात मत कीजिए। आप देखिए कि अभी कल काशी में ठीक बात है कि बगल के पड़ोसी देश से आए हुए एक मतलब डेलीगेशन था, उसका विरोध उत्तर प्रदेश कांग्रेस कर रही थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को वहां लखनऊ में नजरबंद कर लिया गया, और उसके बाद और इन चीजों को बढ़ा चढ़ा करके वो लोग प्रस्तुत कर रहे थे कि बाहर का कोई फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है बनारस में और उनके सामने ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो विपक्ष के लिए मैं बार बार कहता हूं, मैं हरियाणा चुनाव से कह रहा हूं, और विपक्ष के लोग जिनसे सुन रहे हो, कांग्रेस से और इंडी से जुड़े हुए लोग, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि विपक्ष के लिए जमीन खड़ी है, बनी हुई है, जहां विरोध का बस तरीका आप सही करनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि किन मुद्दों पर विरोध करना है और कहां विरोध नहीं करना है। प्रधानमंत्री आज तक नहीं जा रहे थे तो विरोध था, और अब जा रहे हैं तो आप आज तक जो विरोध कर रहे थे वो ठीक था कि नहीं, क्यों नहीं जा रहे हैं। मणिपुर में तमाम तरह की घटनाएं हुई है और वहां निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। नहीं गए वो अलग बात है, छूट गया, पीछे हो गया, भूतकाल की बात होगी। आज जब जा रहे हैं तो अब आज उस इतिहास को लाकर के, उन घटनाओं को लाकर के जब आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। रिलायंस कहीं ना कहीं ये सारी चीजें और जो राजनीति की लगातार गिरता स्तर है वो कहीं ना कहीं लोगों को भी चिंता में डाल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव, और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि तमाम जो राजनेता हैं लगातार उनके भाषा का स्तर भी गिरता जा रहा है और राजनीति का स्तर भी गिर रहा है। हालांकि बिहार की जनता किसमें भरोसा जताएगी ये तो देखने की बात होगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो मिजोरम को इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी और सबसे ज्यादा ऐतिहासिक दिन आज होने वाला है, क्योंकि इस ऐतिहासिक दिन में रेलवे कनेक्टिविटी की सौगात मिजोरम को मिली है, जिससे व्यापार में काफी सुविधा होगी। पर्यटन के लिहाज से भी आज का दिन कह सकते हैं बेहद अहम है। अब देखने की बात कि इस अर्थव्यवस्था के अगर हिसाब से हम आज के दिन को देखते हैं तो मिजोरम को और भारत को कितना आगे फायदा होने वाला है। इसी चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।